Very good morning, student. How are you all? Hope so. You have done your well in your exams and you feel free today. Okay. Let's we continue our new chapter of history, chapter 2. Okay, and we'll enjoy this chapter too much, student, and we'll do something new and something practical in this chapter. Okay, first of all, I will explain some topic and then we will do something in practical way. Okay, so you must watch this video till end. Okay, student, now the chapter of history is on the trail of the earliest people. Okay, we'll start from the introduction. Okay, students, so first of all we'll start the subtopic, why were they on the move. Okay, student, I just gave us some previous knowledge of chapter first that we have studied before, that we said all these earlier humans, we called it hunter gatherers, and I told you what is the meaning of hunter gatherers, है ना, जो जंगल में रहते थे and they collect their food from the hunting and by gathering the food, fruits and food, that's why they called a hunter gatherers. Okay, so students, 2 million years ago human were hunter gatherers. As we know that early humans were hunter gatherers क्योंकि वो क्या करते थे, वो हंट करते थे, हंट मीन्स शिकार करते थे एंड गैदरिंग मीन्स जो फ्रूट्स फूड होता था अपना खाना खाने के लिए जो भी चीज होती थी उसको वो गैदर करते थे, मीन्स इकट्ठा करते थे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हंटर गैदर. ओके, तो 2 million years ago human were hunter gatherers. They gathered food, roots, सीड्स एक्सेट्रा. वो क्या इकट्ठा करते थे स्टूडेंट, जैसे फूड हो गया, रूट्स हो गई, सीड्स हो गई. हमारे जैसा नहीं है उनका जो फूड ईटिंग हैबिट्स थी या जो उनका ईटेबल्स थे, इट वाज नॉट जस्ट लाइक अस. ओके, एंड हंटेड एनिमल्स, फिश एंड बर्ड्स. और वो किसका हंट करते थे, एनिमल्स का, फिश का एंड बर्ड का. So student, we have got so many resources by the archaeologists ki after they used food, roots and seeds also, they used to hunt the animals. Okay, and they hunted animals, fish like and birds all. All this way was very difficult. Do you think student कि why it is very difficult? आपको लगता होगा सुनने में कि ठीक है, they were in jungles and forests and they are just using collecting the food, roots and seeds. It was very easy. No students, it was not very easy, it was very difficult that time. Okay, so we'll study about how it was very difficult. Okay, animals were stronger and run faster. ठीक है, एनिमल्स जो होते थे वो स्ट्रॉन्गर भी होते थे और उनसे भी ज्यादा तेज भाग सकते थे. अभी आपके सामने अगर कोई एनिमल आ जाता है तो हाउ विल यू फील इट है, यू विल बी स्केयर्ड, आपको डर लगता है, आप डर जाओगे. तो just try to think about the hunter gatherers, those who were living in the forest, and they were hunting of wild animals. तो आपको पता है कि कितने वाइल्ड एनिमल्स हैं जो हमसे बहुत ज्यादा तेज भागते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो कितना डिफिकल्ट होगा ऐसे एनिमल्स का हंट करना, है ना. सो ह्यूमंस नीडेड टू बी वेरी अलर्ट, क्विक एंड हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड. तो फॉर ऑल दिस थिंग्स स्टूडेंट्स, जो ह्यूमंस हुआ करते थे उनको वो बहुत अलर्ट हुआ करते थे, क्विक हुआ करते थे और बहुत उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा था. ठीक है, अदरवाइज अगर वो इतने क्विक, अलर्ट और प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होते तो हाउ कुड बी दे हंटेड द वाइल्ड एनिमल्स एंड it was very difficult to survive in the forest. Okay, to collect plants, knowledge of plants is needed to know which of them is poisonous. Students, हमारे जैसा नहीं है कि हमारे fruits आ रहे हैं so we know that we should eat mango, apple, banana like that. They were used to live in forest और उस समय इतना सब कुछ नहीं था, so they have to be a very good knowledge कि कौन सा प्लांट उनके खाने लायक है या नहीं है, which plant was poisonous or not. Okay, so they have a very good knowledge for plants also. अगर उन्होंने कोई पॉइजनस प्लांट खा लिया या कोई पॉइजनस रूट या फ्रूट खा लिया, दे वुड बी डेड. ओके, सो दे हैड अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ प्लांट्स ऑल्सो. नॉलेज ऑफ सीजन्स वर रिक्वायर्ड. ओके, अब कौन से सीजन में, हमें पता है दैट वी ईट मैंगो इन समर एंड वी ईट ऑरेंजेस एंड ऑल दैट, व्हाट सब फ्रूट्स वी ईट इन विंटर, है ना. तो उनको इस चीज की भी नॉलेज हुआ करती थी कि कौन से सीजन में कौन से फ्रूट्स या कौन सा फूड जो है वो होता है. ठीक है, बेसिकली पीपल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजन.
You know that hunter gatherers were nomadic. Nomadic means I told you what is the meaning of nomadic so many times. A person who moves from one place to other place are called nomadic. जो person एक जगह से दूसरी जगह पर move करता रहता है, they are not settled down on a particular place, they are called nomadic. तो जो hunter gatherers थे students वो nomadic थे and they moved from place to place. अब जो उनका जो मूवमेंट था, जो हमारा टॉपिक है वाई वर दे ऑन मूव, वो मूव क्यों करते रहते थे. सो दे आर सम रीजन, दे आर 3 मेन रीजन दैट्स वाई दे ऑन मूव ऑलवेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ दे स्टेड फॉर अ लॉन्ग दे वुड हैव ईटन एवरीथिंग अवेलेबल. अगर वो एक ही जगह पे बहुत लंबे समय के लिए रहते थे तो क्या होता था, दे वुड हैव ईटन एवरीथिंग मीन्स जो भी चीज वहां अवेलेबल हुआ करती थी, चाहे वो फूड हो, चाहे वो एनिमल्स हो, कुछ भी होता था, वेजिटेशन, जो भी वेजिटेशन हुआ करती थी वो उसको खा जाते थे. और आफ्टर दैट वेजिटेशन वुड बी फिनिश, दे हैव टू मूव फॉर द न्यू प्लेस. एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सो पीपल ऑल्सो नीडेड टू फॉलो. ऑल ऑफ यू नो दैट द एनिमल्स माइग्रेट, है ना. एनिमल्स भी सीजन्स के अकॉर्डिंग माइग्रेट करते हैं, हाइबरनेशन करते हैं. स्टूडेंट्स, यू ऑल नो दैट. सो अकॉर्डिंग टू देयर मूवमेंट, अकॉर्डिंग टू द एनिमल्स मूवमेंट, पीपल ऑल्सो नीडेड टू मूव टू फॉलो देम. ठीक है. तो जो उस समय के हंटर गैदर्स, जो अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे, उनको भी क्या करना पड़ता था, एनिमल्स के साथ साथ उनको फॉलो करने के लिए मूव करना पड़ता था, मतलब अपनी जगह छोड़नी पड़ती थी. ठीक है. सपोज एक दे वर लिविंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड दैट फ्रॉम दैट प्लेस एनिमल्स मूव इन अ माइग्रेशन, दे माइग्रेट फ्रॉम अदर प्लेस. तो वहां तो उनको फिर कोई हंट मिलेगा ही नहीं, वहां शिकारी नहीं हो पाएगा. दैट्स वाई तो उनको जो एनिमल्स का जो मूवमेंट हुआ करता था, पीपल को भी, अर्ली ह्यूमंस को भी वो फॉलो करना होता था. प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रू अकॉर्डिंग टू सीजन. देखो, दिस इज क्लियर टू अस. हमारा जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से ही हम आगे आज प्रेजेंट और फ्यूचर में चलते हैं. बहुत सारी चीजें जो हमें बेसिकली हमारी हिस्ट्री से ही अटैच्ड हैं. स्टूडेंट्स, हमें पता है कि कौन सा प्लांट, कौन सा ट्रीज जो है वो किस सीजन में कल्टीवेट होती है, क्रॉप होती है या ग्रोन होता है. तो इसी तरीके से प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रू अकॉर्डिंग टू सीजन. अब सीजन के अकॉर्डिंग भी तो प्लांट्स और ट्रीज ग्रू होते हैं. दैट्स वाई उसके लिए भी लोगों को माइग्रेट करना पड़ता था, मूव करना पड़ता था. पीपल नीड वाटर ऑलवेज एंड मैनी सोर्सेज ऑफ वाटर आर नॉन पेरिनल. ओके. लोगों को पानी के लिए भी, स्टूडेंट, सोर्सेज ऑफ वाटर के लिए भी मूव करना पड़ता था. एंड द सोर्सेज ऑफ वाटर ऑल्सो, सम सोर्सेज ऑफ वाटर आर नॉन पेरिनल. अब यू कैन सी इन दिस पिक्चर स्टूडेंट, देखो जितने भी मॉन्यूमेंट्स बने हैं या जितने भी हमें सोर्सेज मिले हैं, केव्स मिली हैं या रॉक्स मिली हैं, मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट सेटलमेंट स्टार्ट हुआ था वो कहाँ हुआ था. इट इज नियर टू वाटर बैंक, है ना. जहां कहीं भी पानी हुआ करता था वहां पर अर्ली ह्यूमंस ने अपना सेटलर, अपना रहना शुरू करा था, है ना, सेटल डाउन होना शुरू करा था. देखो, ये इस तरीके से हमें प्रूफ मिले हैं. तो ये सब ये शो करता है कि जहां पर भी पानी होगा, ठीक है, क्योंकि उस समय you can see this type, this is a proof, this is our sources which we have got from our history. देखो, जैसे these are the natural resources of water, है ना. तो इनके पास ही वो हमेशा अपना सेटल डाउन होते थे. जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने बताया था, तो दे सेटल डाउन नियर टू इंडस रिवर फर्स्ट, है ना. तो इस तरीके से जहां पर भी सोर्सेज ऑफ वाटर मिलता था उनको, ठीक है, और जहां 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 पानी होगा वहां वेजिटेशन होगी, फॉरेस्ट होगा, ग्रीनरी होगी, फॉरेस्ट होगा, एनिमल्स होंगे. तो फिर वो वहीं पर क्या करते थे स्टूडेंट्स, अपने को रुक जाया करते थे, सेटल कर लेते थे फॉर टाइम बीइंग, और फिर उसके बाद वो मूव कर देते थे. ठीक है स्टूडेंट. अब देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन पेरिनल. व्हाट डू यू मीन बाय द पेरिनल मीन. पेरिनल सोर्सेज, this is very important student. Perennial sources means of water are those rivers and lake in which water is available throughout the year. Okay, वो water sources या water rivers और lakes जो कि throughout, जिसमें पानी रहता है, जो जिसमें हमेशा पूरे throughout year water available रहता है.
जैसे एग्जाम्पल हो गया आपकी गंगा रिवर, यमुना रिवर। आपने कभी देखा है कि गंगा ड्राई अप हो गई या यमुना ड्राई अप हो गई? सो दीज आर द perennial sources of water which give us water throughout the year. Okay, non-perennial of water which are those rivers and lakes in which water is not available throughout the year. कुछ रिवर्स और लेक्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो पूरे साल पानी जिनमें अवेलेबल नहीं हो पाता है, ठीक है। दे वुड बी ड्राई अप अकॉर्डिंग टू द सीजन। ओके स्टूडेंट्स, एंड वाटर इन दैम गेट ड्राइड अप इन द समर सीजन। ऐसे जो नॉन पेरिनियल सोर्सेज ऑफ वाटर होते हैं वो क्या होते हैं, वो समर सीजन में ड्राई हो जाते हैं। जैसे महानदी एंड कृष्णा इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन पेरिनियल सोर्सेज ऑफ वाटर। गंगा रिवर एंड यमुना रिवर क्या है आपका पेरिनियल सोर्सेज है, और जो नॉन पेरिनियल सोर्सेज ऑफ वाटर है वो कौन सा है, महानदी एंड कृष्णा है। तो आपको समझ में आया, पेरिनियल सोर्सेज ऑफ वाटर वो होते हैं स्टूडेंट जो थ्रू आउट ईयर जिसमें पानी रहता है, जिसमें वाटर अवेलेबल होता है, और नॉन पेरिनियल सोर्सेज ऑफ वाटर क्या होता है, जिसमें थ्रू आउट ईयर वाटर नहीं रहता और वो समर सीजन में क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। ओके, तो दीज आर द थ्री मेन पॉइंट्स व्हाई द human move from one place to another place. Okay, now how do we know? अब हमें कैसे पता चला स्टूडेंट्स, है ना? Archaeologists have found tools made of wood, bone and stone used by early people for cutting bone and meat, chop fruits, digging roots and stitching clothes of animal skin. स्टूडेंट देखो, उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, इक्विपमेंट्स नहीं थे, बहुत सारी चीजों के बारे में लोगों को पता ही नहीं था, बिकॉज दे लीड अ कैसी लाइफ लीड करते थे, दे लीड अ नोमैडिक लाइफ, दे यूज टू लिव इन अ फॉरेस्ट। अब आप एक चीज सोचो, जो लोग जंगल में रहते हैं, आज भी जो लोग जंगल में रहते हैं, जो हमारे ट्राइब्स हैं, क्या उनको बहुत सारी टेक्नोलॉजी की नॉलेज है? नहीं है। जो चीज इक्विपमेंट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके पास हैं, क्या उनके पास है? नहीं है। तो आप उस टाइम को सोचो, 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात को सोचो, जो ह्यूमंस, जो अर्ली ह्यूमंस जो हुआ करते थे, जब वो जंगल में रहते थे, तो उनके पास क्या होता था? कुछ भी नहीं होता था, बट दे आर वेरी स्मार्ट, दे वर यूज देयर माइंड, दे वर प्रेजेंस ऑफ माइंड दे हैव, है ना? तो वो क्या करते थे, दे यूज्ड। अब आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला है? उनको मिला है वुड, बोन और स्टोन से बने हुए क्या मिले हैं? टूल्स मिले हैं, जिसका अर्ली ह्यूमंस किसके लिए यूज करते थे? जैसे मीट के लिए, मीट को चॉप करना हो या फ्रूट को चॉप करना हो, डिगिंग रूट्स खोदने के लिए, स्टिचिंग क्लोथ, वो क्लोथ्स भी स्टिच करते थे, लेकिन उनके क्लोथ स्टूडेंट दे वर नॉट जस्ट लाइक दैट, नॉट लाइक अस। उनके क्लोथ हमारे जैसे नहीं होते थे, उनके क्लोथ किसके होते थे? एनिमल स्किन के हुआ करते थे। अब आजकल आप इस टाइम पे एनिमल स्किन के कोई क्लोथ पहनता है? नहीं पहनता है, क्योंकि वी यूज टू वेयर कॉटन क्लोथ, सिल्क, बहुत सारी वेराइटीज हैं, बट दैट टाइम इट वाज नथिंग ओवर देयर। तो दे यूज टू वेयर एनिमल स्किन क्लोथ। तो एनिमल की स्किन से जो वो क्लोथ्स बनाते थे, उसको भी वो किससे स्टिच करते थे? या तो वो सबसे पहले उन्होंने स्टोन से स्टिच करना शुरू करा, स्टोन को वो करना शार्प बनाया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी इस चैप्टर में, है ना? तो दे यूज टू टूल्स मेड ऑफ बाय वुड्स, बोन एंड स्टोन। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं अभी इसी आफ्टर एक्सप्लेनेशन विल जस्ट डू सम प्रैक्टिकल वर्क। ओके, लेट्स मूव। Some may have been attached to handles of bones and wood to make spears and arrows for hunting. ठीक है स्टूडेंट, कुछ जो उन्होंने क्या करा स्टूडेंट, उन्होंने कुछ बोन और वुड को, है ना, बोन और वुड को किससे अटैच कर दिया? वुड की हैंडल से, मतलब उसको एक लकड़ी ली और उससे उसको अटैच कर दिया, जिससे कि उन्होंने क्या बनाए? स्पेयर और एरो बनाए। स्पेयर मीन्स जानते हो आप क्या होता है ना? स्पेयर और एरो उन्होंने उससे बनाए और उससे हंटिंग करनी शुरू की। स्पेयर मीन्स होता है बेटे भाला। ओके, स्पेयर बनाना स्पेयर मीन्स भाला। तो उसको हैंडल में लगाकर उन्होंने स्टोन और वुड के पीसेस को भाले और एरो बनाने शुरू करे। ओके, पीपल ऑल्सो यूज टू चॉप वुड एज अ वुड वॉज यूज इन मेकिंग हट्स। ठीक है, लोगों ने वुड को भी चॉप करना शुरू कर दिया था। वो वुड को चॉप किया करते थे और वुड से ही वो अपनी क्या बनाते थे? हट्स बनाया करते थे। पीपल ट्राई टू फाइंड बेटर क्वालिटी
of stone. Student, I told you before that they have a very presence of mind. They were very alert and very quick. तो वो हमेशा किस चीज की सर्च में रहते थे? They were always looking for a better quality of stone. जितना अच्छा, क्योंकि stone is only the one thing which they use for doing every task. ठीक है, स्टोन के थ्रू ही वो हंटिंग क्या करते थे, स्टोन के थ्रू ही दे वर डूइंग डिगिंग, दे वर चॉपिंग फ्रूट, दे वर चॉपिंग मीट एंड ऑल दैट, है ना. तो स्टोन जो था वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल हुआ करता था. सो द प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन्स वर फाउंड टर्न टू बिकेम फैक्ट्री साइट्स. ठीक है, अब क्या हुआ स्टूडेंट, जहां बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स मिले वो जगह क्या चेंज हो गई, फैक्ट्री साइट में. फैक्ट्री आप जानते हो ना, जहाँ काम होता है, चीजें बनाई जाती है, प्रोडक्शन होता है. हाँ, तो wherever they got a very good quality of stone, they start living over there and they start making over there a very good मतलब very sharp and good quality of tools. We find blocks of stones, tools, vast amount of chips of waste stone in those sites. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिला है, बहुत सारे स्टोन्स के ब्लॉक मिले हैं, टूल्स मिले हैं, है ना, और बहुत सारे अमाउंट में चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन. स्टोन विल कम हियर स्टूडेंट, यहाँ पर स्टोन होगा. तो जब आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला, बहुत सारे साइट्स पे अच्छे स्टोन्स, टूल और काफी सारी अमाउंट में क्या मिली है, स्टोन की चिप्स मिली है. People lived in those sites for a long, so they became habitation कम फैक्ट्री साइट. अब लोगों को वहां बहुत लंबे टाइम तक रुकना पड़ता था, तो जो फैक्ट्री साइट थी वही लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया और उसमें अपने स्टोन्स टूल्स को बनाना भी शुरू कर दिया. तो वो साइट्स क्या कहलाई गई स्टूडेंट, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, है ना. ये सब मीनिंग्स जो है स्टूडेंट्स, मैंने आपको आपकी कीवर्ड आपकी वर्कशीट में सब दिया हुआ है ना, जिसको आप अच्छे से रीड कर सकते हो. एग्जाम्पल, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, दे हैव केव एंड रॉक शेल्टर्स. स्टूडेंट, भीमबेटका मध्य प्रदेश है हमारा, आपको पता है स्टेट है, इट्स द सेंट्रल स्टेट ऑफ इंडिया. तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक जगह है जहां इस तरीके की केव्स मिली हैं, फैक्ट्री साइट स्पेशली वहां मिला है. ठीक है, दे हैव केव एंड रॉक शेल्टर्स, वहां बहुत सारी गुफाएं मिली हैं स्टूडेंट्स. तो और देखो गुफाएं आपकी बुक्स में भी दिखाई गई हैं, वहां पर जो मिली हैं इस तरीके की जो गुफाएं हैं वहां वो मिली हैं. ठीक है, सो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ अ केव शेल्टर्स. केव शेल्टर्स मीन जहां इन केव्स में ही वो रहा करते थे वहां पर लोग. ठीक है, दीज प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम रेन, हीट एंड विंड. तो ये जो केव्स थी वो उनको किस चीज से बचाती थी, रेन, हीट एंड विंड से वो उनको बचाती थी. स्टूडेंट, अब हम इसका प्रैक्टिकली थोड़ा सा करेंगे. जो मैंने आपको बताया हाउ दे मेड अ टूल्स बाय अ स्टोन एंड व्हाट दे वर यूज्ड टू दिस स्टोन्स टूल, है ना. तो विल डू समथिंग इन प्रैक्टिकल. ओके, yes students, now you can see I tried to make something for you to showing you. I just collect some stones like this and I just made it arrow. ओके, सो ये देखो स्टोन्स कितने शार्प स्टोन्स हैं. तो इस तरीके से बहुत शार्प स्टोन्स जो हुआ करते थे अर्ली ह्यूमंस कलेक्ट करते थे और उनको शार्प बनाते थे, उनकी टेक्निक्स हुआ करती थी उसको करने के लिए. सो दे यूज टू मेड दिस टाइप ऑफ अ टूल्स. देखो यू कैन सी दिस स्टोन, दिस इज वेरी शार्प एजेस, है ना. तो इस तरीके के स्टोन्स का वो यूज जो था वो किया करते थे. आई जस्ट ट्राई टू मेक टू शो यू एंड यू ऑल्सो कैन ट्राई टू मेक इट. ओके, आप भी ट्राई करना इसको घर पे. यू कैन गेट अ गुड कलेक्शन ऑफ योर स्टोन्स ओवर देयर. इस तरीके से जो थोड़े से शार्प एजेस स्टोन हो स्टूडेंट वो कलेक्ट करना और उसको किसी भी स्टिक पे, वुडन स्टिक पे आप लगा सकते हो. देखो दिस इज वेरी शार्प. तो इस तरीके के स्टोन्स का वो जो यूज था वो हंटिंग के लिए क्या करते थे स्टूडेंट्स. ठीक है, तो इस तरह के स्टोन्स जो थे वो उनके लिए मेनली टूल्स थे यूज करने के. एंड बाय दिस stones they used to do chopping, they used to do digging the roots, hunting, they used to make us arrows, spear, है ना. तो इस तरीके से जो प्रॉपरली वो उनके पास जो भी एक इक्विपमेंट या टूल हुआ करता था वो क्या था, स्टोन था.
ठीक है, अभी मैं आई जस्ट शो टू हाउ टू डिग द रूट्स बाय दिस स्टोन्स. ओके student, you can see that I am digging the soil here. You can see that by this stone. Okay, तो they also use this type of a stone for digging roots, है ना, and chopping foods. देखो, अगर आप इसको practically करते हो, हम कभी कभी अपने घर में भी करते हैं student ऐसे, when we don't have anything to dig the root soil and a ground, so we use this type of a stones. So this is a very small plant which I am digging here. तो देखो ये I am digging this plant, है ना. So this type of a things they get it, है ना. तो जैसे मैंने इसको डिग करके बाहर निकाल लिया, दे ऑल्सो टेक आउट द थिंग्स फ्रॉम द सॉयल एंड दे यूज स्टार्ट टू यूज इट. सो यू कैन ऑल्सो अप्लाई ऑल दिस थिंग्स एट योर होम स्टूडेंट बाय द स्टोन्स. देखो, दिस इज द थिंग्स वी कैन डू लाइक दिस. ओके, yes, this is called a digging. Okay, and we can take out the things out of by digging the things. देखो, I am digging this plant here and it will come out. It will come out like this. देखो, this, ये देखो बाहर निकल आया ना. हाँ, like this it will come out, है ना. हाँ, roots will come out, है ना. देखो, so you can also try to do this at your home. So you come to know how the life was very difficult for the early peoples. It was not very easy to live in a forest and leading their life over there. It is quite tough. Okay, but they were very alert, quick, and they had a very good presence of mind, students, है ना. So in this way they did the work, and we should also try, okay, in a practical way how it is difficult. Okay, so students, hope so this topic is understand, it is clear to you. Okay, and just try to this practical things at your home. And if anybody just want to make the spear and arrow as I show you here, you can send me in WhatsApp group. Okay, आप बना के try करो उसको. You just you have to collect the some stones and you have to just bind that stone with a wooden stick somewhere, and you can send me that pics in your WhatsApp group also. Okay, I feel very happy when you will send this type of a pics to me. Okay, so have a nice day, student. If you are having any query, you can send me your queries in WhatsApp group. Definitely I will answer you. Thank you. Have a nice day.